Hello, students. Once again, we are here to learn more about the secretarial practice. We have already started with our topic, that is first chapter, secretary. We have discussed in first chapter about the meaning of secretary, that is a person who keeps the secrets of his boss and who is appointed by the busy personalities. We have also learned in detail the features of secretary. Today we are going to learn about the types of secretary. We have already discussed about the personal secretary. Personal secretary is a secretary who is appointed by busy businessmen, industrialists, or the doctors, lawyers, engineers. Today we are going to learn in detail about the institutional secretary. Now, these institutional secretaries are appointed by an institution or organization to carry on their day-to-day routine work. These institutions are of different type and the secretaries appointed for non-profit association, cooperative society, joint stock company and government department. We are going to learn now in detail about all these types of secretary. Very first type of secretary is secretary of a non-profit association. First of all, we have to understand the meaning of non-profit association. Non-profit associations are the associations or organizations which are formed for rendering services to their members and society and to promote social, cultural, educational, arts, sports activities. The secretary of institutions, they are appointed full-time or part-time on salary basis or on honorarium basis. So, honorarium basis means that they will be paid something that is called as mandhan, but they will not be given any fixed amount of salary. Around us, we can see the different types of non-profit association. This is the symbol of Indian Chamber of Commerce, Rotary Club. You all know about that they are doing the charity work around us. Then this is the Sports Club, which carries on the sports activity. Lions Club, they are also carrying on many activities in society. The Cultural Club, which carries on the cultural activities for the members and society. All these are the non-profit associations. The secretary of a non-profit association should need certain qualifications, but there is no prescribed qualification for this secretary. They should have the knowledge of the organization's activities under which they are working or for which they are working. They should have the knowledge of all the objectives and the functioning of that organization. For example, if they are working for any sports club, then they should know that what kind of activities are carried on in the sports club. तो जैसे आपको पता है स्पोर्ट्स क्लब होगा तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है. इट मीन्स दैट कि डिफरेंट टूर्नामेंट्स यहाँ पर अरेंज की जाती है, एक्सपर्ट्स की यहाँ पर गाइडेंस होगा, सेमिनार, वेबिनार्स, एग्जीबिशंस etc. will be conducted regarding this sports activity. डिफरेंट स्पोर्ट्स है, गेम्स है, इसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. देन
मेंबर्स के लिए यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह अरेंज किया जाएगा, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी, तो सेक्रेटरी को इसके बारे में पता होना चाहिए. देन अगेन सेक्रेटरी शुड हैव द नॉलेज ऑफ फाइलिंग, बिकॉज सेक्रेटरी को वेरियस डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, जैसे कि जो मेंबर्स होंगे, जो प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स क्लब के, तो उनकी फ़ीस के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उनकी फ़ीस रिसिप्ट वगैरह होगी. उसके बाद में रजिस्टर्स होगा दैट दे आर गोइंग टू मेंटेन. कोई प्लेयर होंगे जो लाइफ मेंबरशिप भरेंगे, कोई मेंबर होंगे जो मंथली मेंबरशिप भरते हैं, कोई 6 मंथ की भरेंगे, कोई सिर्फ एग्जीबिशन, सेमिनार्स, वेबिनार्स या टूर्नामेंट के लिए फ़ीस पे करेंगे. देन आफ्टर दे हैव टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. कोई चैरिटी प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो उसमें जो डोनेशंस आते हैं, चैरिटी आती है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. देन दे हैव टू कीप द अकाउंटिंग ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, तो उसके बुक्स उनको रखने पड़ेंगे. डिफरेंट रजिस्टर्स है, लेजर्स है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स होगी, उसको फाइल करना पड़ेगा. देन द सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल ऑल द लेटर्स, जो भी लेटर्स आते होंगे उसे, या खुद लेटर्स लिखते होंगे उसकी कॉपी उनको रखना पड़ेगा. सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इज़ टू बी केप्ट बाय द सेक्रेटरी. उसके बाद में सेक्रेटरी शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड. तो एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, डेटा फीडिंग का होना चाहिए. डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो वेल नोन है, जो बहुत ही पॉपुलर है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एक्सेल है, वर्ड है, देन पीपीटी है, टैली पैकेज है. तो ऐसे जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स ज़रूरी है, उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए, सो दैट इजीली शी कैन सेक्रेटरी कैन डू द वर्क ऑफ डाटा फीडिंग. देन करस्पॉन्डेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज लेटर राइटिंग सेक्रेटरी हैज़ टू डू इन डे टू डे लाइफ. तो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को परमिशन मांगने के लिए लेटर करना है, चैरिटी डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए करना है, मेंबर्स को करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा कि उनका मेंबरशिप जो है उसको रिन्यू करवाने के लिए, उनसे फ़ीस कलेक्ट करने के लिए सेमिनार है, वेबिनार है, एग्जीबिशन है, कोई एक्सपर्ट का गाइडेंस लेक्चर है, तो उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए. सो दिस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन शुड बी possessed by the secretary of non-profit association. Now let us see the second type of secretary, that is secretary of cooperative society. Before learning about the secretary of cooperative society, we should know the meaning of cooperative society. Now the cooperative society is a organization or a association which is voluntarily formed by minimum 10 adults or more. In Maharashtra, if you want to form cooperative society, then you have to follow the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. The main objective of this cooperative society is to provide services to its members. तो जो भी इसके मेंबर होंगे उनको सेवा देने के लिए ही cooperative societies फॉर्म होती है. These are the well-known symbols of different cooperative society. You can see here cooperative banks, housing cooperative society. Then this is the Kendriya Bhandar, or we can say that cooperative consumer store. Then this is the Amul, that is the that is again the cooperative society. So these all cooperative societies are formed basically to serve or to give services to their members. Now, the appointment of cooperative society secretary is done on honorarium basis. That means that the secretary will not be paid any fixed amount of salary. Many a times the secretaries are going to work without money.
If the society is large, then only they will be paid full-time salary. Otherwise, they are not paid any amount in the cooperative society. Now, regarding the managing committee, the managing committee is the members elect their representatives among themselves only. That body is called as management committee. So they are going to manage the day-to-day activities of the cooperative society. You have seen this तारक मेहता का उल्टा चश्मा. Atmaram Tukaram Bhide, who is the secretary of Gokuldham Cooperative Society. So he is one of the flat owner of that cooperative society. यहाँ पर एक मैनेजिंग कमेटी है. उस मैनेजिंग कमेटी में जैसे जेठालाल है, पोपटलाल है, अय्यर है, तारक मेहता है और अपने आत्माराम तुकाराम भिड़े है. तो ये मैनेजिंग कमेटी बताई गई है कि इसमें एक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक ट्रेजरर का काम करता है, एक कमेटी मेंबर है और उसके बाद में एक जो है वो सेक्रेटरी है. यानी कि फ्लैट ऑनर्स आपस में ही उन्होंने अपनी एक मैनेजिंग कमेटी बनाई है एंड दे लुक आफ्टर देयर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो यहाँ पर जो है जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आइदर वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है या कोऑपरेटिव बैंक हो सकती है या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है. तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उसमें से ही अपने ही मेंबर में से दे आर गोइंग टू फॉर्म अ मैनेजिंग कमेटी और उसमें से ही एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ट्रेजरर, एक कमेटी मेंबर होगा और एक सेक्रेटरी. आपस में ही वो चुनाव करेंगे and they have to work accordingly for their society. We will see about the qualification of cooperative society. As such, Cooperative Society Act के हिसाब से there is no need of any qualification of secretary, but secretary should have the knowledge of Cooperative Societies Act because they have to various documents as per the government के जो rules होते हैं cooperative society के act के हिसाब से उन्हें गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है वेरियस रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करने पड़ते हैं. दैट इज़ वाई दे हैव सेक्रेटरी शुड हैव द नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. प्रिफरेबल है कि सेक्रेटरी शुड बी अ ग्रेजुएट. आइदर वो बीएससी होनी चाहिए, बीए होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए. तो कोई भी ग्रेजुएशन अगर किसी भी फील्ड में किया होगा तो दैट विल बी मोर एडवाइजेबल बिकॉज देन ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो कर सकेंगे और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर सकेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ बिफोर लर्निंग इन डिटेल अबाउट द सेक्रेटरी ऑफ company, we should know the meaning of joint stock company. Again, joint stock company is a voluntary association of persons which is formed for carrying any business activity on large scale, and whatever profit is earned by this company it will be shared among the members. shareholder जो है वो real owners होते हैं. अब जो सेक्रेटरी हम अपॉइंट करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में, they are going to appoint as per the Companies Act 2013 के हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए. Then the company secretary they have to work under the board of directors. Now who are these board of directors? So the board of directors are the representative of the shareholders. अब जो शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी को स्टार्ट किया है, ऐसे जो लोग हैं, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल एबीसी एक कंपनी है नागपुर में फॉर्म हुई है, बट इसके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बॉम्बे में भी हो सकते हैं, हैदराबाद होंगे, दिल्ली होंगे, कलकत्ता होंगे, चेन्नई होंगे, ये भी समटाइम्स फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ये कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं. Now these shareholders they are the real owners of the company, but these people they are scattered all over the world. पूरे दुनिया में ये बिखरे हुए हैं. Now they don't have time
अगर टाइम होगा भी तो दे डोंट हैव एक्सपीरियंस टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी. सो व्हाट दे डू, दे नीड द एक्सपर्ट हैंड टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी. और इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, अपने जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको कैरी ऑन करने के लिए अपने बिहाफ पे कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उनका वो अपॉइंटमेंट करते हैं. एंड दीज एक्सपर्ट्स पर्सन्स, उनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, जिनको कंपनी को रन करने का एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, एंड दे हैव द गुड रिलेशंस विद द बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इनके साथ में कैसे डीलिंग करना, दे हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इवन दे आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ लार्ज स्केल कंपनी. So that is why they are elected or appointed by the shareholders or the real owners of the company. And this board of directors, again they are very much busy persons, because उनको तो पूरी बड़ी कंपनी को हैंडल करना है, उनके कंपनी के पूरे बिजनेस एक्टिविटी को संभालना है, तो ये तो काफ़ी बिजी होते हैं. तो डे टू डे रूटीन वर्क कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गोइंग टू अपॉइंट सेक्रेटरी. And this secretary, they should have the knowledge of Companies Act 2013 का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इनको कंपनी का पूरा जो वर्किंग है वो देखना है. नाउ इनकी अपॉइंटमेंट कब की जाती है, तो जब कंपनी का बर्थ होता है, जब कंपनी फॉर्म होती है, जब कंपनी बनाई जाती है, उसी स्टेज में कंपनी सेक्रेटरी विल बी अपॉइंटेड. बिकॉज वहाँ से ही कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे काम करने होते हैं, वेरियस डॉक्यूमेंट्स उनको ड्राफ्ट करना होता है, प्रिंट करना होता है, वेरियस काइंड ऑफ करस्पॉन्डेंस एक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को फाइल करवाना पड़ता है. सो दैट इज़ व्हाई ड्यूरिंग फॉर्मेशन स्टेज ओनली दे आर अपॉइंटेड. अगेन दिस कंपनी सेक्रेटरी, दे आर द की मैनेजरियल पर्सोनल, यानी कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिसर होते हैं अपनी कंपनी के लिए. जैसे डायरेक्टर्स का इम्पोर्टेंस होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस कंपनी सेक्रेटरी का होता है, बिकॉज उसका एक की रोल है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कंपनी को प्रॉफिट अर्न करवाने में. नाउ वी विल सी दी क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. तो कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI का एक मेंबर होना चाहिए. और ये मेंबरशिप कब मिलती है, व्हेन कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पासिस द एग्जामिनेशन ऑफ CS. कंपनी सेक्रेटरी की एग्ज़ाम जो पास कर लेता है, दैट पर्सन ओनली कैन बिकम द मेंबर ऑफ ICSI. तो उसके पास में सारा नॉलेज होता है, अकाउंटिंग का, लीगल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट. द सेक्रेटरी शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दिस डिटेल्स. और उसके लिए उसे एक प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, देन ओनली द पर्सन कैन बिकम द कंपनी सेक्रेटरी. नाउ वी आर गोइंग टू सी the fourth and the last type of institutional secretary, that is the secretary of government department. Here you can see the government department. Now what is the government department? So the government departments are the departments which are working under the various ministers of state and central government. तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, 29 स्टेट्स आर देयर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट. तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं. और हर एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है. जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर होम डिपार्टमेंट है. तो हर एक डिपार्टमेंट के एक एक मिनिस्टर है, और उन मिनिस्टर के अंडर में सेक्रेटरीज होते हैं, तो उसको हम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेंगे. नाउ यू कैन सी हियर हु इज़ द लेडी. आपने अभी बजट देखा होगा,
तो बजट जो जिन्होंने डिक्लेयर किया है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, यू कैन सी हियर। और सीतारमन जी का ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, ये इनका ऑफिस है। यू ऑल नो अबाउट नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के साथ में कौन है? डॉक्टर पीके मिश्रा, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। हियर यू कैन सी दी Ajay Kumar Bhushan, he is the Secretary of Finance Department. Now, the appointment. ये जो सेक्रेटरी अभी मैंने बताया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, इन सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वर्किंग विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इधर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। इन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसकी तरह से उसकी पोस्ट की अपॉइंटमेंट होती है सेक्रेटरी की। लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, डिफेंस सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है। द क्वालिफिकेशंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। So the secretary of a government department should possess graduation degree and they should pass the civil service examination which is conducted by Public Service Commission. Then after they should be in Indian Administrative Services. तो IAS ये भी एग्ज़ाम उन्होंने पास करनी चाहिए, देन ओनली दे कैन बिकम द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो दिस इज़ द डिफेंस मिनिस्टर। अभी मैंने आपको बताया था डिफेंस मिनिस्टर के भी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट अजय कुमार जी है। देन दिस इज़ द लिस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स और उनके जो सेक्रेटरी हैं। You can see here Prime Minister's Office, डॉक्टर पीके मिश्रा IAS ऑफिसर है। देन कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं जो IPS ऑफिसर्स हैं। देन एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, वहाँ पे भी IAS ऑफिसर्स है। एटॉमिक एनर्जी IAS ऑफिसर है। आयुष के साइंटिस्ट होते हैं सेक्रेटरी। देन सिविल एविएशंस के IAS ऑफिसर्स होते हैं। सो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द इमेज। नाउ हियर इज़ द लिंक फॉर मिनिस्ट्रीज ऑफ मिनिस्टर्स, लिंक फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। So this is the link, you can go through this and you can find it out. List of secretaries of India. So this is the link, Wikipedia से आप देख सकते हो, पूरी लिंक आपको मिल जाएगी where you can see the latest departments और secretaries, उनके नाम, उनकी qualification, everything, ministers के नाम, all details is given in these links. You can go through this. Today we have learned about the institutional secretaries, that is of 4 types. That is Secretary of Non-Profit Association, Secretary of Government Department, Secretary of Cooperative Society and Joint Stock Company Secretary. Thank you very much for being with me. Hope that you have enjoyed the journey.